Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 1st July and the day is Wednesday. Hopefully you are all fine and safe at home and learning is good. Now we are going to start our next topic as we have started chapter number 4, which was about the bonding. In the last lecture we have discussed properties of bond. Now we are going to discuss polar and non-polar compounds. As discussed earlier, the polarity in a chemical bond is due to difference in electronegativities of the bonding atoms. On the Pauling scale, fluorine has been given an electronegativity value of 4. The values of other elements are calculated relative to it. पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे. पोलर कंपाउंड्स are those compounds in which poles are formed and we have positive and negative ending molecule are included in polar compounds, while all other compounds which do not have any positive and negative ending are called as non-polar compounds. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एज डिस्कस अर्लियर द पोलैरिटी इन अ केमिकल बॉन्ड इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डिंग, कि जो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर कोई भी पोल अगर बनता था तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह डिफरेंस की वजह से बनता था. एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से उनके दरमियान में पोल्स क्रिएट हो जाते थे और वो जो पोल्स थे वो फिर कंपाउंड बनाते थे जिसे हम लोगों ने पोलर कंपाउंड्स का नाम दिया था. On the Pauling scale, fluorine has been given an electronegativity value of 4. तो Pauling scale पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन है. और Pauling was the scientist who gave the concept of the difference of electronegativity. Pauling is one of the 4 scientists in the world who has got the Nobel Prize 2 times. इसको 2 दफ़ा नोबल प्राइज़ मिला था एंड इट्स नेम इज़ लाइनस पॉलिंग. Properties of non-polar and polar compounds differ to some extent. Non-polar covalent compounds usually do not dissolve in water, while polar covalent compounds usually dissolve in water. ठीक है, ऐसे compounds जिनके अंदर poles बनते हैं वो polar solvent के अंदर ही dissolve होंगे, जबकि ऐसे compounds जिनके अंदर poles नहीं बनते which are non-polar compounds, they will not dissolve in water, but they will dissolve in non-polar solvents like benzene, like ether. Similarly, non-polar compounds do not conduct electricity, but an aqueous solution of a polar compounds usually conduct electricity due to formation of ions as a result of its reaction with water. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पोल्स बनते हैं जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी ड्यू टू द आयंस ही होती है. लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर पोल्स ही नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे. जब उनके अंदर आयंस ही नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. Their properties are mostly similar to those of covalent compound, as the nuclei in these compounds are held by shared pair of electrons. Therefore, they do not form ions in water. Due to their covalent nature, they form solution in organic solvents and are very less soluble in water. ठीक है, ये इनकी यूजली दे आर रिजिड कंपाउंड विद द डाइपोल. ये भी सिंपल सा पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के बारे में. वो कह रहे हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो कोवलेंट कंपाउंड जैसी ही है. हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी लास्ट टाइम. तो वो कह रहे हैं कि ये भी कैसे बनते हैं, बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनते हैं. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. दे डू नॉट फॉर्म आइंस इन वाटर, इनके आइंस नहीं बनते बिकॉज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स में आइंस नहीं बनते. Due to their covalent nature, they form solution in organic solvent and very less soluble in water. Why they are very less soluble in water? Because they have no poles, they have only negligible
solubility in water. Next is the metals. Metals have common property of conducting heat and electricity. It gives them primary role in many industries. Major properties shown by the metals are follow. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की? दे शो मेटेलिक लस्टर, ठीक है, इनकी मेटेलिक लस्टर होती है विच इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. दे यूजली मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल क्या होता है? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बाय virtue ऑफ विच a metal can be rolled into sheet, while ductility is the property by virtue of which a metal can be drawn into wires. ठीक है, metals are have मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी. मेलेबल कैसे होते हैं? ऐसे मेटल्स जिनको हम लोग आसानी से शीट्स बना सकते हैं, जिनकी हम लोग शीट्स बना देते हैं, उनको हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं. और ऐसे मेटल्स जिनको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है. ठीक है, ये अगर हमारे पास कॉपर वायर है, इन वायर्स में जो मेटल्स कन्वर्ट हो जाती हैं उनको हम लोग डक्टिलिटी का नाम देते हैं. दे हैव यूजली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं. इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स बनते हैं. फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके दरमियान में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है. Second last point is being greater in size, they have low ionization energies and form cations very easily. Metals like copper, zinc, aluminium, these are some examples of the metals. They have a very large size. Large size किसकी वजह से होता है? Due to the नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. जितने सारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल्स यानी शेल्स ज़्यादा होंगे. जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा इनका साइज़ भी बड़ा होगा. एंड वी नो डैट डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़. जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता है, और साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी कम होती हैं. एंड व्हाट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट शेल पर बहुत कम होगा क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, तो इस वजह से इनके आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी कम होती हैं, और ये बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं. They are good conductor of heat and electricity in solid and liquid state due to mobile electrons. ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट्स में ये इजीली अपना करंट पास कर देते हैं, क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं. मोबाइल फॉर्म में, तो मोबाइल मीन दैट दे आर मूविंग, दे कैन मूव ईजीली, तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं. और हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इसकी होती है कंडक्टिविटी. Hopefully you have the better understanding of this topic. If you find any difficulty, highlight the problem and clear it. Thank you.